Hello students, myself Rakesh Misra. This is one of the another video from cytology. In this video lecture, I will describe about the very important question that is from 1 marks, 2 marks or 5 marks. They may be the short and long question. They may be the short and long type question. In previous video lecture, you have learned about MCQs type question that from NCERT exemplar sample papers and probably may ask in the upcoming examination, maybe the competitive examination too. In this video lecture, I will describe about the short and long type question from cell, the unit of life chapter. That is all about matter for class 9th, but it may help for the competitive examination for those students who are appearing for the competitive examination or who are preparing for the upcoming board examination. So here the collection of different kinds of sample papers in this video lecture, and also the question from NCERT exemplar and side book is also available. So don't waste your time and keep with the video lecture till the ends, and I hope you have a pen paper along with the video lecture. You should learn and you should write about the probable answer that may ask the question that may ask as a question in upcoming examination. So be with the video lecture, and I hope your concept regarding different questions I think would be clear. Now back to the different questions along with their probable expected answer with explanation, and you should write about the answers along with the video lecture. Now the question short and long type. Here the question is short and long type. Question 1 is explain the types of plastids in brief. Actually, you may are well familiar with the word plastids. Plastids are the characteristics of only plants. It is the characteristics of plants. It means no animal cells possess plastids. Plastids are basically the chloroplast, the chromoplast, and third type is the leucoplast. Chromoplasts are colorful, that provide green color for plants because of having the very important pigment that is known as chlorophyll. So what is the difference between chlorophyll and chloroplast? Chloroplast is the type of plastid, and the pigments associated with the chloroplast are actually known as chlorophyll. Now back to the second components, the chromoplast. Chromoplast form the colorful components, colorful parts of the plants except the chloroplast. कीप इन माइंड क्लोरोप्लास्ट के अलावा अगर प्लांट्स में कोई कलरफुल पार्ट्स है एक्सेप्ट ग्रीन, लाइक प्लांट्स में भी येलो, प्लांट्स में भी रेड और प्लांट्स में भी वायलेट, ब्लू एक्सेट्रा, देयर में बी ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट. एंड द पिगमेंट्स एसोसिएट विद द क्रोमोप्लास्ट्स आर जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स. So xanthophyll, carotenoids are the important pigment that associated with the chromoplast, and the chromoplast actually help in the help to provide the color of petals so that plants able to attract the insects. So these are the function of chromoplast. And function of chloroplast, you all know that the chloroplast function is provide the ability of photosynthesis because of having the green color, because of having the pigments chlorophyll. In higher classes you will learn the different types of chlorophyll actually involved in the different kinds of plants on the basis of the light intensity fall in them, but you should learn about the chloroplast. Chloroplast are the green pigments because of having the chlorophyll. So chromoplast is over. Now back to the leucoplast. Actually leucoplast are colorless. It is colorless object, colorless part, colorless plastids in the plant cells that actually store the food materials. That the leucoplast actually store the food materials. The basic function of leucoplast is to store the food like the starch, like carbohydrates, fats and proteins. So leucoplast actually associate with the food storage ability. So here the three types of plastids are common in case of the study of plastids: the chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast, that is green color, provide the photosynthetic ability. Chromoplast are colorful, they may be the yellow, red or violet blue.
and they provide the color of the plants, color of the petals, and help in the process to attract the insect during the pollination. And leucoplasts are the colorless plastids that actually store the food materials. ठीक है, ये तीन बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। और ये प्लास्टिड्स का डिटेल देखो, ये जब भी पूछेगा तो एटलीस्ट 5 मार्क्स में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स आप जरूर लिख दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सबका मैंने डिटेल बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो लाइव क्लास में उसको पॉइंट आउट करके रखिएगा। ठीक है, लाइव क्लास में उसको डिटेल बता दिया जाएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। एक्चुअली जो बेसिक फंक्शन होता है गोल्गी बॉडी का, वो सबसे पहले क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स that synthesize from the endoplasmic reticulum, स्पेशली द लिपिड एंड प्रोटीन। जब लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो कौन करता है उसका मॉडिफिकेशन, बॉडी के अकॉर्डिंग गोल्गी बॉडी। ठीक है, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो कि ये प्रोटीन बन गया। ठीक है, नाक का प्रोटीन बनाना है, आँख का प्रोटीन कोई भी बनाना है, तो ये बॉडी के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सेकेंड इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल। इस सेल में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, यानी सेल में सब्सटेंस को एक सेलुलर पार्ट से दूसरे सेलुलर पार्ट्स तक ले जाते हैं। तो बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, द मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, आई होप इसको आप कर ले जाएंगे। इसको गोल्गी बॉडी भी बोला जाता है, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्गी। ठीक है, ये कैपिटल जी रहेगा, कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। इसको इसी वजह से गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कभी कभी गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। तो इसे यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्गी बॉडीज आर द सिमिलर वर्ड रिलेटेड टू द सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। चलो आते हैं, व्हाट इज न्यूक्लियोइड्स। देखो न्यूक्लियोइड्स क्या होता है बेटा, मैं समझा दे रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल किससे सराउंडिंग रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह, वो किसी से भी सराउंड नहीं होते हैं। ठीक है, वो सराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है पूरी तरह से, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, वो अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट का एग्जांपल क्या मिल गया आपको, बैक्टीरिया। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, फिर भी आप अगर माइक्रोस्कोप पे प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस तो दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं जेनेटिक मटेरियल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म कहीं भी इधर उधर घूमे, ऐसा नहीं। वो जहाँ पे उनकी फिक्स जगह है ना, वहीं पे वो रहते हैं। इस फिक्स रेमनेंट यानी कि झूठे फॉल्स न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। द फिक्स रेमनेंट फॉल्स न्यूक्लियस और रेमनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, रेमनेंट न्यूक्लियस को बोलते हैं इसको रेमनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, तो रेमनेंट और फॉल्स न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो ये दोनों एक चीज़ है। एक होता है ट्रू न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, बट आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा सेंटर में तुमको जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है, बट जब बहुत क्लियरली जूम करके उसको देखेंगे तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगा। ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स और रेमनेंट न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और the spots of nucleus at the center of cell in prokaryotes called as nucleoids। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह में ही होते हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगी। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में आपको डिफरेंट पूछता है, तो आप टेबल बना लीजिएगा, एक में प्लांट सेल्स लिखिएगा, एक में एनिमल सेल्स लिखिएगा। ठीक है, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होता। दूसरी चीज़, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें प्लास्टिड्स नहीं होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें प्लांट सेल्स में आपको क्या मिलेगा, प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस वो बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस छोटा होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंट हैं।
प्लांट सेल्स में जो फूड वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में फूड वैक्यूल्स छोटा होता है। फूड वैक्यूल्स ये बड़ा होता है और इसमें फूड वैक्यूल्स क्या होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, प्लांट सेल्स में जो शेप होता है उसका फिक्स होता है और एनिमल सेल्स में शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स का जो शेप होता है फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे एनिमल सेल्स में लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, और प्लांट सेल्स में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। किसी किसी प्लांट्स में होता है तो इसमें रेयर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लांट सेल्स में रिजर्व मटेरियल जो है, प्लांट सेल्स का जो फूड का रिजर्व मटेरियल्स है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन, और इसमें क्या है, स्टार्च। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इसका रिजर्व मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और इसका क्या है, स्टार्च, STARCH। आई होप अभी बहुत सारे ऐसे डिफरेंट है जिसमें आप जो है लिख सकते हैं। आपको कम से कम 5 पॉइंट्स तो एकदम लर्न होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलो आते हैं। व्हाट आर सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स। सीधे लिख दिया है व्हाट आर सुसाइडल बैग्स और ब्रैकेट में दे दिया लाइसोसोम्स। ठीक है, तो सुसाइडल बैग्स क्यों इसको कहते हैं, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सुसाइडल बैग्स इसको क्यों बोलते हैं। Actually, during the adverse condition when you are going to hunger, the specialized cell organisms like suicidal bags of cells, that is the lysosomes, start the secretion of very important enzyme that is known as lysozyme, and that lysozyme start the digestion of self body parts. लाइसोजाइम क्या करता है, अपने ही बॉडी पार्ट्स का डाइजेशन शुरू कर देता है, अपने ही सेल ऑर्गेनल्स का डाइजेशन। जब खुद से खुद को मौत के गले लगाते हैं तो उसको सुसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड। तो ये लाइसोसोम्स खुद ही लाइसोजाइम सिक्रेट करता है और खुद को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, बॉडी के लिए अपनी कुर्बानी देना शुरू कर देता है। इस वजह से इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, आई होप इसको कर ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे, एज वी नो दैट द सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ इट्स ओन पार्ट्स इवन व्हेन द कंडीशन आर एडवर्स, even when the condition are adverse, it means the condition are not favorable for the body। clear है ना। what is the function of chromosomes, chromosomes carry the genetic material, chromosomes carry the genetic material DNA, and DNA possesses the genes, the little segment of DNA known as genes, and each segments of genes, that is each part of DNA that is known as genes, कंट्रोल द बॉडी पार्ट्स। कोई आंख बनाएगा, कोई नाक बनाएगा, कोई कान बनाएगा, कब, बच्चे का। ठीक है, बच्चा छोटा होता है या शुरुआती की स्टेज जो जाइगोट का होता है, यूनिसेलुलर स्टेज जिसको डिप्लॉयड जाइगोट्स बोलते हैं, तो धीरे धीरे वो बेबी बनता है। रीजन क्या है कि उसके बॉडी के सभी सेल्स में क्या है, डीएनए, और डीएनए किस फॉर्म में है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। और डीएनए में ऐसा क्या है, डीएनए में जीन्स है। जीन्स हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए यूनिक होते हैं, इसलिए बॉडी में मिलियंस ऑफ द जीन्स होते हैं। हर एक जीन्स हर एक बॉडी पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई आँख बनाएगा तो वो जीन्स कान नहीं बनाएगा, कोई कान बनाएगा तो वो जीन्स जो है आँख नहीं बनाएगा। तो ये बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोल करते हैं, बॉडी के ऑर्गन को बनाने में, हार्मोन्स और प्रोटीन को बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लिखेंगे कॉपी में, क्रोमोसोम्स कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडी डिजाइन। हमारी बॉडी में कुल कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और ये 23 के पेयर्स में, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो 23 के पेयर्स में होते हैं। 23 का पेयर्स मतलब नंबर ऑफ 46। ठीक है, इससे अगर एक नंबर कम हो जाए, एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी डिजाइन में चेंजेज आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 46 में तो जीन्स भी होंगे, और जीन्स अगर एक क्रोमोसोम्स कम हो जाएगा तो मिलियंस ऑफ द जीन्स कम हो जाएंगे, तो बॉडी डिजाइन में चेंजेज आ जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या है क्रोमोसोम्स का, possess the information of body design and responsible for protein synthesis because of having the very important genetic material DNA। I hope आपका कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल आगे पीछे पूछा हुआ है, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। नेम द स्मॉलेस्ट सेल एंड ये क्या है, विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म। नोट कर लीजिए कॉपी में, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, स्पर्म। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल क्या है, ओवम। ठीक है, ओवम क्या है, लार्जेस्ट सेल है, और स्पर्म क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी के केस में। ओवरऑल लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। ओवरऑल लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, PPLO, इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स लिख दे रहे हैं ताकि आपका स्पेलिंग सही हो जाए। ठीक है, लिखो कॉपी में प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोन एज PPLO। ये क्या है? स्मॉलेस्ट एवर नोन सेल, स्मॉलेस्ट एवर नोन सेल। और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? वो है स्पर्म। ठीक है, और लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है? वो एग्स। ठीक है, ह्यूमन एग यानी ओवम की मैं बात कर दे रहा हूँ। ठीक, आई होप आपका ये 9 और 10 वाला 8 और 9 वाला कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप पूछ लिया करिए। नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वाई प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के कंपेयर में मोर रिजिड क्यों होता है? आप थिंकिंग करिए। प्लांट सेल्स पॉजेस द सेल वॉल, बिकॉज ऑफ हैविंग द सेल वॉल प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड्स। 2 बार आर दिया हुआ है तो यहाँ पे एक ही बार पढ़ेंगे। प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड्स देन द एनिमल सेल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ हैविंग सेल वॉल। बेसिक कंपोजिशन भी कभी कभी सेल वॉल का पूछ देता है। प्लांट सेल में सेल वॉल का जो मेजर कंपोजिशन है वो क्या है? सेलुलोज है। हर क्लास में आप पढ़ेंगे कि सेलुलोज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एसोसिएटेड कंपोनेंट्स है जिसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, बिकॉज ऑफ हैविंग सेल वॉल। एंड एनिमल सेल्स डू नॉट पॉजेस सेल वॉल सो दैट देयर बॉडी आर एक्चुअली नॉट रिजिड टू कंपेयर देन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन डिटेल। प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस समझ लीजिए, जैसे मान लो कि ये कोई बीकर है जिसमें आप साल्ट सॉल्यूशन भर दिए, साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट में क्या है? साल्ट जो सॉल्यूशन है, साल्ट जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या है? सॉल्यूट है जो ज़्यादा अमाउंट में है, और सॉल्वेंट है यानी वाटर है वो कम अमाउंट में, माइनस लगा दिया। और अंदर उसके सेल डाल दीजिए। तो सेल का एक रीजन ये होता है कि सेल अपने से हाई, सेल के अंदर जो वाटर है, सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा है, मैं पॉजिटिव लगा दिया, और जो साल्ट है वो कम है। ठीक है, जो साल्ट है वो क्या है? माइनस कर दिया, कम है। तो वाटर की एक खास बात होती है कि वाटर अपने से कभी भी हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो अपने से हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे आपके पास परफ्यूम की अगर बॉटल है तो देखेंगे कि परफ्यूम का बॉटल जैसे स्प्रे दबाते हैं तुरंत परफ्यूम अंदर से बाहर आता है। क्यों? क्योंकि अंदर परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर परफ्यूम बिल्कुल नील है। ठीक है, तो होगा क्या कि वो तेज़ी से बाहर आता है। कब तक बाहर आता रहेगा? जब तक उसका कंसंट्रेशन अंदर कम ना हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि गुब्बारे में हवा जब भरी है तो उसको हल्का सा पिन करिए तो बहुत तेज़ी से हवा बाहर आती है। रीज़न क्या है कि अंदर गुब्बारे के अंदर जो जगह है वो एक्चुअल में कम है, किसके कंपेयर में? जो उसके अंदर गैस भरी हुई है। तो गैस के लिए जब जगह कम होगी तो जिसमें एयर का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है तो धीरे से वो बाहर आना शुरू करेगा। ऐसे ही आप देखोगे स्कूल की छुट्टी होती है तो आप ऐसी जगह पे भागना शुरू करते हैं जहाँ पे खाली जगह होता है। ठीक है, भीड़ भाड़ वाली जगह में तो भागेंगे नहीं। तो ये सबकी खास बात होती है कि हमेशा आदमी हो चाहे कोई भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो, हमेशा अपने से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाई से लो में जाता है। तो एनिमल वाटर की भी यही टेंडेंसी होती है। वाटर अपने से हाई कंसंट्रेशन में, यहाँ देखिए वाटर प्लस लगा है तो वाटर अपने से हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। तो साल्ट सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन लो है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लगेगा इसमें से पानी बाहर आने। लेकिन ये नॉर्मल सा फिनोमिनन है कि अगर वाटर जो है या कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो जनरली इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। बट अगर बीच में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना सेल में, कहीं भी अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है और उसको क्रॉस करके वाटर जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। द फिनोमिनन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से सेल के अंदर श्रिंकिंग शुरू हो जाएगा। जब श्रिंकिंग शुरू हो जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। ये दो तरह से ऑस्मोसिस होता है, या तो पानी अंदर से बाहर जाए या अंदर से पानी बाहर आ जाए। ठीक है, तो अगर पानी अंदर से बाहर आ रहा है सेल टू सिस्टम तो उसको बोलेंगे एक्सऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? एक्सऑस्मोसिस। तो जो प्लाज्मोलिसिस है ना, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वो एक्सऑस्मोसिस की वजह से है। ठीक है, और अगर वो
पानी बाहर से अंदर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, इसकी वजह से सेल में स्वेलिंग होगा और उस सेल को बोलेंगे टर्जाइड सेल्स, और फिनोमिनन क्या हो जाएगा, टर्जिडिटी। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। सपोज दैट इस सिस्टम में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस सिस्टम में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, और ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और ये भी सेल है, तो सेल का फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सारा पानी जो है अंदर से अब बाहर इसमें जाएगा तो सेल जो है क्या हो जाएगा, स्वेल करते हुए बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो इस फिनोमिनन को बोलेंगे टर्जिडिटी, टर्जिडिटी, ठीक है। और ये एंडोस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है क्योंकि पानी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे बाहर देखिए माइनस लगाया है, यानी कि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, तो सेल से पानी बाहर आएगा, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस, और इसकी वजह से सेल जो है पिचक जाएगा, और जब पिचक जाएगा तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लाज्मोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलिसिस। आई होप आपको प्लाज्मोलिसिस, एक्सॉस्मोसिस, एंडोस्मोसिस का कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर ही हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिए यहाँ पे हमने 11 नंबर तक यहाँ पे मैंने क्लियर करा दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से 11 नंबर तक आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 12 ऑनवर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपका इस बिफोर जो है रीओपनिंग ऑफ स्कूल कम से कम साइटोलॉजी वाला पोर्शन, यानी कि सेल द यूनिट लाइफ वाला पोर्शन जो है ये क्लियर हो जाए। तो इसको आप वीडियो को मान लीजिए पार्ट वन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और इस 11 क्वेश्चन को, 11 जो क्वेश्चन के पैक है, इसका आप कॉपी में लिख डालिए आंसर के साथ विद द वीडियो लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल ब्रिंग यू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड। थैंक यू।